Hi everyone, let's look at the actual CAT question based on time and work. So here we are given that a person can complete a job in 120 days. He works alone on day 1. On day 2, he is joined by another person who also can complete this job in exactly 120 days. On day 3, they are joined by another person of equal efficiency. Like this, every day a new person with same efficiency joins the work. How many days are required to complete the job? So here we are given that a person can complete a job in 120 days. So let me take the work as 120 units. So we are given that a person can complete a job in 120 days. So efficiency of that person will be he can complete 120 units in 120 days. So that means efficiency is 1 unit per day. And on day 1 he works alone. So वो एक दिन में 1 यूनिट करेगा. Now second day क्या होता है? He is joined by another person with same efficiency. तो मतलब 1 + 1 that means 2 units per day work होगा. And on day 3 they are joined by one more person, that means 1 + 1 + 1, that means third day में 3 unit work होगा, and so on. So here we have to find कि जॉब कितने टाइम में कंप्लीट होगा. So let me take that कि n days में वर्क कंप्लीट होगा. So obviously there will be n persons, okay, and we have to find कि कितने डेज में वर्क कंप्लीट होगा एंड टोटल वर्क कितना कराना है. 1 + 2 + 3 टिल n, दैट इज 120 यूनिट्स वर्क कराना है. सो एन एट डे भी n यूनिट्स वर्क होगा क्योंकि हर एक पर्सन की एफिशिएंसी 1 है. सो 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 टिल n is 120. So as you can see that these are the natural numbers and we know the formula for sum of first n natural number, that is n into n plus 1 by 2 equal to 120. So if I cross multiply 2, so this will be n into n plus 1, that is 240. So n into n plus 1, n into n plus 1 क्या शो कर रहा है कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट 240 है. ठीक है, तो फर्स्ट n है, सेकंड n plus 1 है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं. So we should know that that number should be 15 into 16, which is 240. Okay. So number of days is 15. So your input answer is 15 days. तो आपको इनपुट करना है ओनली 15. बट अगर इनकेस आपको क्लिक नहीं होता है कि किन दो नंबर का ये प्रोडक्ट है, किन दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट है 240, तो आप साइड में जाके इसको प्राइम फैक्टराइज कर लो. वी नो दैट 24 इंटू 10 इज 240, 8 इंटू 3 24, 2 into 5 is 10. Okay, so 8 into 2 is 16 and 3 into 5 is 15. So as you can see that it is the product of two consecutive number 15 and 16. So we got the value of n as 15. So input answer is only 15. 15 days mein work complete hoga 120 units. So I hope you got this. Let's look at the next actual CAT question based on pipes and systems. So here we are given that a tank has an inlet pipe and an outlet pipe. If the outlet pipe is closed, then the inlet pipe fills the tank in 8 hours. If the outlet pipe is open, then the inlet pipe fills the tank in 10 hours. If only the outlet pipe is open, then in how many hours full tank becomes half full. So basically यहाँ पे given है कि एक टैंक है जिसमें एक इनलेट पाइप है और एक आउटलेट पाइप है. इफ द आउटलेट पाइप इज क्लोज्ड, अगर आउटलेट पाइप क्लोज होगा देन जो इनलेट पाइप है वो टैंक को 8 आवर्स में फिल कर देगा. और अगर दोनों ऑन होंगे, ठीक है, अगर दोनों ऑन होंगे तो टैंक जो है 10 आवर्स में फिल होगा. ये गिवन है. और नेक्स्ट पूछा है कि अगर आउटलेट पाइप को ऑन कर दिया जाए और टैंक फुल है तो हाफ फुल कब होगा. तो पहले तो यहाँ पे अपन ये देखें कि 8 और 10 का एलसीएम ले लेते हैं टू गेट द कैपेसिटी ऑफ टैंक. सो एलसीएम ऑफ 10 एंड 8 विल बी 40 लीटर्स. तो अपन ने टैंक की कैपेसिटी मान ली 40 लीटर. So from here we can get the efficiency of inlet pipe
and outlet pipe. So efficiency of inlet pipe will be 40 liters. Tank 8 hours में fill करता है alone. So that is 5 liter per hour. एंड आउटलेट पाइप और इनलेट पाइप जब दोनों ऑन होते हैं तो टैंक 10 आवर्स में फिल होता है. सो दैट मीन्स efficiency of inlet pipe and efficiency of outlet pipe is 40 लीटर दोनों मिलके 10 hours में fill करते हैं. So that is 4 liter per hour. So from here we can see that we have efficiency of inlet pipe as 5 liter per hour. Efficiency of outlet pipe is equal to 4 liter per hour. तो यहाँ से आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी आ जाएगी दैट इज 4 माइनस 5 दैट इज -1 लीटर पर आवर. ओके, तो अब यहाँ पे देखो ऑप्शनल है, अगर आपको ई आई प्लस ई ओ कर रहे हो, मतलब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी प्लस में ले रहे हो तो आपकी ये नेगेटिव वैल्यू आएगी. अगर आपको पता है आउटलेट पाइप नेगेटिव वर्क कर रहा है, अगर आप यहाँ माइनस लोगे तो ये पॉजिटिव आएगा. तो वो आपको प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, ये भी मैं आपको यहाँ पे करके बता देता हूँ कि सपोज करो अगर आप ऐसे लेते हो इक्वेशन इनलेट पाइप minus outlet pipe is equal to 4 liter per hour. So we have inlet efficiency as 5 minus EO equal to 4. So efficiency of outlet pipe will be 1 liter per hour. तो यहाँ पॉजिटिव आएगी. तो यहाँ पॉजिटिव इसलिए आ रही है क्योंकि आपने इनिशियली इक्वेशन में माइनस लिया था, लेकिन अगर आप प्लस लेते हो तो आपकी एफिशिएंसी नेगेटिव आएगी. नेगेटिव साइन बस ये डिनोट कर रहा है कि नेगेटिव एक्शन हो रहा है. मैग्नीट्यूड दोनों केस में सेम ही रहेगा और वही यूज होता है. तो अब यहाँ पे अपन ये देखें कि कैपेसिटी तो है अपने पास, अपन को बताना है कि अगर टैंक पूरा फुल है, मतलब पूरा फुल अपन को पता है 40 लीटर है, तो जब वो हाफ फुल हो, हाफ फुल कितने टाइम पे हो जाएगा, अगर लीकेज पाइप ऑन हो जाए तो, मतलब आउटलेट पाइप ऑन हो तो टाइम टेकन बाय आउटलेट पाइप विल बी 20 लीटर एम्प्टी करना है. इनिशियली 40 लीटर फिल था, हाफ फिल करना है तो मतलब 20 लीटर खाली करना है. तो आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी क्या है, 1 लीटर पर आवर. So 20 by 1 is, this will get cancel out, that is 20 hours. अब आप यहाँ पे -1 रखो या 1 रखो, आएगा तो 20, बस माइनस साइन इंडिकेट करेगा नेगेटिव एक्शन. ठीक है, तो अवॉइड माइनस साइन. बी क्लियर विद दीज टाइप ऑफ इक्वेशंस व्हाइल यू आर यूजिंग दी नेगेटिव एफिशिएंसीज. ओके, तो प्लस लगाओगे तो नेगेटिव, माइनस लगाओगे तो पॉजिटिव. तो आई वुड रिकमेंड यू टू फॉलो दिस प्रोसीजर बिकॉज अपन को पता होता है कि जो नेगेटिव एक्शन होते हैं, जो आउटलेट पाइप्स होते हैं उनका नेगेटिव एक्शन होता है, तो अपन एफिशिएंसी नेगेटिव लेके ही चलें. तो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, 1 से ही डिवाइड कर देना, 20 by 1 is 20 hours, क्योंकि इनपुट तो आपको पॉजिटिव वैल्यू ही करनी है. सो आई होप यू गॉट दिस. लेट्स लुक एट द नेक्स्ट एक्चुअल कैट क्वेश्चन बेस्ड ऑन टाइम एंड वर्क. So here we are given that Amal can complete a job in 10 days and Bimal can complete a same job in 8 days. Amal, Bimal and Kamal together can complete a job in 4 days and are paid a total amount of 1000 as remuneration. If this amount is shared by them in the proportion to their work, then Kamal's share in rupees is. So basically यहाँ पे given है कि अमल 10 days और बिमल 8 days में वर्क कंप्लीट करते हैं इंडिविजुअली. अमल, बिमल एंड कमल तीनों मिलके अगर काम करते हैं तो काम वही सेम काम 4 दिन में कंप्लीट होता है और उस काम के टोटल इनको 1000 मिलते हैं, जिसमें आपको बताना है कि 1000 में कमल का शेयर कितना होगा. तो यहाँ पे अपन पहले देखें वर्क क्या लेंगे. अपन लेंगे एलसीएम ऑफ टाइम टेकन बाय अमल एंड बिमल, तो दैट इज 10 एंड 8. इसका एलसीएम ले लो, तो दैट इज 40 यूनिट्स. ओके, अब यहाँ से अपन निकालेंगे एफिशिएंसी ऑफ अमल, दैट इज अमल 40 यूनिट्स 10 डेज में कंप्लीट करता है, so that is 4 यूनिट्स पर डे अमल की एफिशिएंसी है. और बिमल की एफिशिएंसी कितनी है, बिमल 40 यूनिट्स 8 डेज में करता है, so that is 5 यूनिट्स पर डे. ठीक है, अब यहाँ पे ये भी गिवन है कि जब तीनों साथ में काम करते हैं तो 4 डेज में वर्क होता है. तो दैट मीन यहाँ पे अपन को कंबाइंड एफिशिएंसी मिल जाएगी ए, बी और सी की. तो दैट मीन्स 40 यूनिट्स तीनों मिलके 4 डेज में कंप्लीट करते हैं. तो दैट मीन्स टोटल एफिशिएंसी इनकी है 10 यूनिट्स पर डे. ठीक है, सो फ्रॉम हेयर वी कैन गेट द एफिशिएंसी ऑफ सी, सॉरी एफिशिएंसी ऑफ के नॉट सी, दैट इज कमल. ओके,
सो एफिशिएंसी ऑफ ए इज 4, एफिशिएंसी ऑफ बी इज 5, एफिशिएंसी ऑफ कमल अपन को फाइंड करनी है। टोटल एफिशिएंसी इनकी 10 यूनिट्स है। सो एफिशिएंसी ऑफ कमल इज 5 10 माइनस 9 दैट इज 1 यूनिट पर आवर पर डे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या गिवन है कि इनको 1000 रुपीज मिले थे। अब एक पॉइंट आपको ध्यान से समझना है जो मैं बता रहा हूँ वो ये है कि जब भी आप अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो एक चीज नोटिस करोगे कि वर्क में इन लोग का इन्वॉल्वमेंट कैसे था, मतलब टाइम पीरियड अगर अपन देखें तो 4 दिन तक इन्होंने मिलके काम किया है। तो तीनों का टाइम पीरियड सेम है, तीनों सेम टाइम तक इन्वॉल्व थे। तो जब टाइम सेम होता है तब अपन मनी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एफिशिएंसीज रेशियो में या फिर वर्क के रेशियो में। तो अगर यहाँ पे जैसे आप बात करो कि यहाँ पे अपन देखें कि यहाँ पे टाइम तो कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है मतलब तीनों सेम टाइम तक इन्वॉल्व थे, तीनों 4 दिन के लिए इन्वॉल्व थे, तो टाइम ऑलरेडी सेम है। तो अब आप 1000 एफिशिएंसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सो अपने पास एफिशिएंसी रेशियो क्या है, ए बी और के का, ए का 4:5:1। ठीक है। तो ये एफिशिएंसी रेशियो है अपने पास। तो अपन को शेयर निकालना है किसका, कमल का। तो 1000 रुपीज 4:5:1 में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो जिसमें कमल का शेयर क्या होगा, कमल का शेयर होगा 1/5 + 4 9 + 1 10, 1/10 ऑफ 1000। So that is 100 rupees. So that is the required answer which is available in option A. ठीक है। और अगर इनकेस टाइम डिफरेंट है कि अगर कोई पर्सन बाद में ज्वाइन करता है तो आप क्या करोगे, एफिशिएंसीज में टाइम मल्टीप्लाई करके फिर जो रेशियो आएगा उस रेशियो में आप अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो भी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एफिशिएंसी या वर्क के बेसिस पे होता है, टाइम के बेसिस पे नहीं होता। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है और तभी इन टाइप के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे। So I hope you got this. Let's look at the next actual CAT question based on pipes and systems. So here we are given that a tank is fitted with pipes, some filling it and the rest draining it. All filling pipes fill at the same rate and all draining pipes drain at the same rate. The empty tank gets completely filled in 6 hours when 6 filling and 5 draining pipes are on. But this time becomes 60 hours when 5 filling and 6 draining pipes are on. In how many hours will the empty tank gets completely filled when 1 draining and 2 filling pipes are on? तो बेसिकली यहाँ पर गिवन है एक टैंक है जिसमें कुछ फिलिंग पाइप्स अटैच्ड हैं, कुछ ड्रेनिंग पाइप्स अटैच्ड है। दोनों पाइप्स की, फिलिंग और ड्रेनिंग पाइप्स की एफिशिएंसी सेम है। और यहाँ पे गिवन है कि एक एम्प्टी टैंक 6 आवर्स में फिल हो जाता है जब 6 फिलिंग और 5 ड्रेनिंग पाइप्स ऑन होते हैं, और यही टाइम 60 आवर्स हो जाते हैं जब 5 फिलिंग और 6 ड्रेनिंग पाइप्स उसको फिल करते हैं। तो अपन को बताना है कितनी देर में टैंक पूरा फिल होगा अगर सिर्फ 2 फिलिंग पाइप और 1 ड्रेनिंग पाइप ऑन हो तब। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या करते हैं कि फिलिंग पाइप की एफिशिएंसी मान लेते हैं एफ और ड्रेनिंग पाइप की एफिशिएंसी मान लेते हैं -d, बिकॉज ड्रेनिंग पाइप नेगेटिव एक्शन कर रहे हैं। ठीक है। सो दैट इज द एफिशिएंसी ऑफ पाइप्स। नाउ वी नो वेरी वेल दैट एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज कैपेसिटी ऑफ टैंक। सो वी आर गिवन दैट कि 6 आवर्स में 6 फिलिंग पाइप और 5 ड्रेनिंग पाइप्स फिल करते हैं। तो 6 फिलिंग पाइप एंड 5 ड्रेनिंग पाइप्स, ये कंबाइंड एफिशिएंसी हो गई फिलिंग और ड्रेनिंग पाइप्स की। 6 आवर्स में पूरा टैंक फिल करते हैं तो एफिशिएंसी इनटू टाइम पता है अपन को, दैट इज द कैपेसिटी ऑफ टैंक। और सेम टैंक 5 फिलिंग पाइप्स और 6 ड्रेनिंग पाइप्स 60 आवर्स में फिल करते हैं। तो कैपेसिटी सेम है तो इसको अपन इक्वेट कर देते हैं। यहाँ से अपन को क्या मिल जाएगा, इस इक्वेशन से अपन को फिलिंग पाइप और ड्रेनिंग पाइप की एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा। और अपन ने यहाँ पे क्या इक्वेट करा है, टैंक की कैपेसिटी। तो उसको सॉल्व करते हैं अपन। 6 × 10 इज 60, तो 6f - 5d इक्वल टू 10 5s are 50 minus 60d, 50 minus 6 that is 44f, and 60 minus f will be 55d. So that is 11 4s are 44, 11 5s are 55. So that means f by d का रेशियो आएगा 5/4. So let me take the efficiency of filling pipe as 5 liter per hour.
and draining pipe has 4 liter per hour. So from here we can find the capacity of tank. Capacity will be 6 filling और 5 draining pipe 6 hours में fill कर रहे थे, तो 6 filling और 5 draining pipes 6 hours में tank fill कर रहे थे, तो 6 into 5 minus 5 into 4 into 6, 30 minus 20 is 10, 10 into 6 will be 60 liters. So that is the capacity of tank. अब यही टैंक किससे फिल करवाना है, 2 फिलिंग पाइप और 8 ड्रेनिंग पाइप से, तो कितना टाइम लगेगा, तो टाइम टेकन बाय 2 फिलिंग एंड 1 ड्रेनिंग पाइप विल बी 60 लीटर फिल कराना है. 2 फिलिंग पाइप की एफिशिएंसी होगी 2 फिलिंग और 1 ड्रेनिंग पाइप. ठीक है, तो यह एफिशिएंसी रख दो आप, 2 इंटू 5 10, ड्रेनिंग पाइप की 4, 10 माइनस 4, so that is liter per hour. So from here we can say that liter will get cancelled out, 60 by 6 in hours, so that is 10 hours. So that is the input answer. अपन को यहाँ पे input करना था 10. Okay, so I hope you got this. Just do remember this concept that efficiency into time is equal to capacity of tank. और जब भी अपन को combined efficiencies पता हो तो उसमें कैपेसिटी को इक्वेट करके अपन एफिशिएंसी का रेशियो निकालें, फिर कैपेसिटी निकालें, कैपेसिटी से फिर जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग टाइम निकालें. Let's look at the next actual CAT question based on time and work. So here we are given that humans and robots can both perform a job but at different efficiencies. 15 humans and 5 robots working together take 30 days to finish the job, whereas 5 humans and 15 robots working together take 60 days to finish it. How many days will 15 humans working together take to finish it? तो बेसिकली ये कंबाइंड एफिशिएंसीज के बेसिस पे क्वेश्चन है. यहाँ पे ग्रुप है, एक ह्यूमंस का एक रोबोट्स का, दोनों की एफिशिएंसीज डिफरेंट है. यहाँ पे एक और पॉइंट गिवन है कि अगर 15 ह्यूमंस और 5 रोबोट्स वर्क करते हैं एक साथ तो वर्क 30 डेज में कंप्लीट हो जाता है, और यही सेम वर्क अगर 5 ह्यूमंस और 15 रोबोट्स मिलके करते हैं तो 60 डेज में कंप्लीट होता है. ठीक है, अब इसमें अपन को ये पता करना है कि अगर 15 ह्यूमंस वर्क करते हैं तो कितने डेज में कंप्लीट होगा. सो ओनली 15 ह्यूमंस अगर करते हैं तो कितने टाइम पे वर्क कंप्लीट होगा. और इसमें अपन को ये पॉइंट नोटिस करना है कि वी नो दैट एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज ऑलवेज वर्क. तो अपन कंबाइंड एफिशिएंसीज लेंगे पहले ह्यूमन और रोबोट्स की, उनका टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन को वर्क पता चलेगा. बट उससे पहले अपन मान लेते हैं ह्यूमन की एफिशिएंसी h यूनिट्स पर डे एंड रोबोट की एफिशिएंसी r यूनिट्स पर डे. ठीक है, तो अब इस बेसिस पे अपन इक्वेशन बना लेते हैं वर्क की. तो अपन को गिवन है कि 15 ह्यूमन एंड 5 रोबोट्स कैन कंप्लीट अ जॉब in 30 days, whereas 5 human and 15 robots can complete the same job in 60 days. As they are doing the same job, तभी अपन ने इसको इक्वेट किया है. तो वर्क अपन ने यहाँ पे इक्वेट करा है, और वर्क इक्वेट करने से क्या होगा, ह्यूमन और रोबोट की एफिशिएंसी का रेशियो मिल जाएगा. ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं अपन. दैट इज 30 इंटू 2 60, तो 15 ह्यूमन plus 5 robots equal to 10 humans. 2 into 15 30 r. So this will be 15 minus 10, that is 5h, 30 minus 5, that is 25 r. तो ह्यूमन और रोबोट की एफिशिएंसी आ गई अपने पास, that is 25 by 5 और 5 by 1. So we can take the efficiency of human as 5 units per day and robot की efficiency 1 unit per day. ठीक है, अब अपन को बताना है कि अगर ये काम 15 ह्यूमन ही सिर्फ करते तो कितना टाइम लगता. तो अपन पहले वर्क पता कर दे.
तो वी हैव वर्क दिस 15 ह्यूमन 5 रोबोट्स इन 30 डेज और 5 ह्यूमन 15 रोबोट्स इन 60 डेज। तो कोई भी लेफ्ट या राइट पार्ट लेके वर्क निकाल लेते हैं। सो वर्क विल बी 15 ह्यूमन एंड एक ह्यूमन की एफिशिएंसी 5 है एंड 5 रोबोट्स और एक रोबोट की एफिशिएंसी 1 है। सो दैट इज द टोटल एफिशिएंसी multiplied by 30. So that is the total work. So 15 into 5, 75 plus 5, that is 80 into 30. So that is the total work 80 into 30 units. अब ये जो वर्क है ये किससे करवाना है? 15 ह्यूमन से. So time taken by 15 humans will be work is 80 into 30 units and एक ह्यूमन की एफिशिएंसी 5 है. So 15 humans की होगी 15 into 5. So that will give you the time in days. So 15 twos are 30, 5 16s are 80. So that is 16 into 2 is 32 days. Okay. So that is available in option B. Let's look at the next actual CAT question based on time and work. So here we are given that when they work alone, B needs 25% more time to finish a job than A does. They too finish the job in 13 days in the following manner. A works alone till half the job is done. Then A and B work together for 4 days. And finally, B works alone to complete the remaining 5% of the job. In how many days can B alone finish the entire job? So basically यहाँ पे गिवन है फर्स्ट कि बी को 25% टाइम ज़्यादा लगता है कोई भी टास्क कंप्लीट करने में एज कम्पेयर टू ए। तो अपने पास टाइम का इंफॉर्मेशन पता है कि ए और बी का अगर अपन टाइम रेशियो देखें तो वो हो जाएगा 4/5, क्योंकि अगर ए को 4 डेज लगते हैं तो बी को 5 डेज लगते हैं, तो विच इज 25% मोर देन 4। ठीक है, तो इससे अपन को क्या मिल गया? टाइम रेशियो ए और बी का। तो दैट इज द टाइम रेशियो। और अपने पास अगर टाइम रेशियो है सो वी कैन फाइंड द एफिशिएंसी रेशियो। तो दैट इज द एफिशिएंसी रेशियो हमेशा रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/4। तो वी नो दैट एफिशिएंसी इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो अगर मेरे पास ए और बी का काम करने के डेज पता है, उसका रेशियो पता है, तो एफिशिएंसी रेशियो उसका रेसिप्रोकल होगा। नाउ वी आर गिवन दैट कि ए और बी ने मिलके 13 डेज में वर्क कंप्लीट किया है, लेकिन किस मैनर में? कि सबसे पहले अपन अगर टाइमलाइन बनाए तो 13 डेज में वर्क कंप्लीट हुआ है जिसमें ए ने अकेले 50% जॉब किया है। ठीक है, देन फिर ए और बी ने मिलके देन फिर ए और बी ने मिलके 4 डेज काम किया है एंड देन फिर रिमेनिंग 5% जॉब बी ने अकेले किया है। ठीक है, तो ए ने जब 50% किया है तब कितना टाइम लिया वो नहीं पता, और बी ने जो 5% किया है लास्ट में वो कितने टाइम पे किया है नहीं पता। बस ये पता है कि 4 दिन ए और बी ने मिलके काम किया था और टोटल टाइम अपन को 13 डेज गिवन है। सो फ्रॉम एयर वी कैन से दैट कि अगर इतनी इंफॉर्मेशन है सो ए ने 50% किया है, बी ने 5% किया है, तो दैट मीन्स ए और बी ने रिमेनिंग कितना काम किया होगा? 45%। क्योंकि टोटल वर्क अगर 100% है तो 100 में 50 और 5 हटा देंगे तो 45 बचेगा। सो फ्रॉम एयर वी कैन कंक्लूड दैट ए और बी ने मिलके 4 दिन में 45% वर्क किया है, और वो किसके बराबर है? ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की 4, 5 + 4 कर देंगे 9। सो 9 × 4 इज 36। सो 36 यूनिट 45% के बराबर। तो ए और बी ने मिलके 36 यूनिट जो है दैट इज 45% वर्क वो 4 दिन में किया है। तो अगर 45% वर्क 36 यूनिट है तो कैन वी से दैट 100% वर्क क्या होगा? दिस विल बी 36/45 into 100. So this will be 9495 5 into 20. So that is 80 units. So that means total work 80 units है। अब क्वेश्चन ने बोला है इन हाउ मेनी डेज बी अलोन फिनिश द इंटायर जॉब। तो अब यही 80 यूनिट्स बी को कितना टाइम लगेगा करने में?
बी की एफिशिएंसी अपन को पता है 4, सो वी कैन फाइंड द टाइम. सो टाइम टेकन बाय बी अलोन टू फिनिश द जॉब इज 80 यूनिट्स करना है, और बी की एफिशिएंसी है 4 यूनिट्स पर डे. सो दैट इज 20 days. Okay, which is available in option C. Let's look at the next actual CAT question based on pipes and systems. So here we are given that a tank is emptied every day at a fixed time point. Immediately thereafter, either pump A or B or both start working until the tank is full. On Monday, A alone completed filling the tank at 8 p.m. On Tuesday, B alone completed the tank at 6 p.m. And on Wednesday, A alone worked till 5 p.m. and then B worked alone from 5 to 7 p.m. to fill the tank. At what time was the tank filled on Thursday if both pumps were used simultaneously all along? तो यहाँ बेसिकली गिवन ये है कि एक टैंक है जो एक फिक्स टाइम पे खाली हो जाता है, और उसी टाइम पे इमीडिएटली पंप ए या पंप बी या दोनों को ऑन कर दिया जाता है टू फिल द टैंक अगेन. ठीक है, तो ऐसे ही जब ए और बी को ऑन किया जाता है तो उनकी शेड्यूलिंग गिवन है कि अगर मंडे को ए ऑन होगा तो 8 बजे तक टैंक भर देगा, और अगर ट्यूसडे को बी अकेले ऑन होगा तो वो 6 बजे तक भर देगा. वेंसडे को ए 5 बजे तक टैंक भरता है और बी फिर 2 घंटे और टाइम लेके टैंक फिल कर देता है. तो ऐसे ही अगर अपन से पूछा है कि थर्सडे को अगर दोनों पंप ऑन कर दिए जाएंगे तो टैंक कितने टाइम पे फिल होगा, तो अपन को ऑप्शंस में टाइम गिवन है, सो वी हैव टू फाइंड द टाइम नॉट आवर्स. ठीक है, तो इस पे वर्क करते हैं. तो ये तो क्लियर है कि एक फिक्स टाइम पे अगर टैंक खाली हो जाता है फिर उसको भरने के लिए ए और बी ऑन होते हैं, मतलब वो दोनों सेम टाइम पे ऑन होते हैं. दैट इज द मेन पॉइंट. ठीक है, अब मंडे की वर्किंग देखें अपन, तो मंडे की वर्किंग अपन को गिवन है कि पंप ए जो है वो 8 बजे तक टैंक फिल कर देता है. ट्यूसडे की वर्किंग देखें अपन, तो पंप बी 6 p.m. तक फिल कर देता है. और वेंसडे की वर्किंग अगर अपन देखें तो वेंसडे में ए जो है 5 p.m. तक वर्क करता है, फिर बी जो है 5 to 7 p.m. तक टैंक को फिल कर देता है. और क्वेश्चन ने अपन से पूछा है थर्सडे को थर्सडे को ए और बी अगर दोनों ऑन कर दिए जाएं स्टार्टिंग से ही तो टैंक कब फिल होगा. ठीक है, वो टाइम बताना है अपन. तो पहले अपन यहाँ पे ये देखें कि ए को 8 बजे तक, ए जो है अगर ऑन होता है मंडे को तो 8 बजे तक टैंक भर देता है, तो अपन मान लेते हैं ए को टी आवर्स लगते हैं टैंक फिल करने में. ठीक है, तो अपन मान लेते हैं ए को टी आवर्स लगते हैं टैंक फिल करने में. ठीक है, तो बी को कितना टाइम लगेगा, दोनों सेम टाइम पे ऑन होते हैं. ए 8 बजे तक बढ़ता है, बी 6 बजे तक, मतलब ये 2 घंटे कम ले रहा है, तो मतलब बी को टाइम लगता है T-2 आवर्स. ठीक है, अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि वेंसडे की वर्किंग अपने पास है और वेंसडे को दोनों ऑन होते हैं, ए बी और बी भी, लेकिन अलग अलग टाइम पे. तो इससे अपन क्या करेंगे, वेंसडे की हेल्प से अपन ए और बी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे पाइप्स की. ठीक है, तो अपन को पता है ए जो है 5 p.m. तक वर्क करता है वेंसडे को, तो टैंक तो वो 8 बजे तक भर देता अगर अकेले ऑन होता तो, लेकिन वो 5 बजे तक ऑन था वेंसडे को, मतलब 3 घंटे पहले ही उसको बंद कर दिया गया. तो मतलब ए ने वेंसडे को T-3 आवर्स तक वर्क किया. ठीक है, और फिर बी ने 2 घंटे 5 to 7 काम किया. तो दैट इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक. क्यों, क्योंकि एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है कैपेसिटी ऑफ टैंक. तो एफिशिएंसी इनटू टाइम दैट इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक. और ये वर्किंग कब की है, ये वर्किंग है वेंसडे की. और इसी कैपेसिटी को अपन इक्वेट कर सकते हैं किससे, ए अकेला टी आवर्स में पूरा टैंक फिल कर सकता है, सो दैट कैन बी इक्वेटेड बाय ए इंटू टी, दैट इज द टोटल कैपेसिटी. तो यहां से अपन ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेंगे. तो दिस विल बी 80 - 3a plus 2b equal to 80. So 80 and 80 will get cancelled out and this will be 3a equal to 2b
सो दैट मीन्स ए बाय बी का एफिशिएंसी रेशियो आ गया अपने पास 2/3. So let me take the efficiency of A as 2 liter per hour and efficiency of B as 3 liter per hour. ठीक है. अब वी गॉट दी एफिशिएंसी और अपन को मंडे और ट्यूसडे की वर्किंग पता है कि ए टी आवर्स लेता है, बी टी माइनस 2 आवर्स लेता है उसी सेम टैंक को फिल करने में. तो यहाँ से अपन टी की वैल्यू पता कर लेंगे क्योंकि एफिशिएंसी अपने पास है. तो अब टी की वर्किंग करते हैं. टी कैसे मिलेगा? वी नो दैट ए टेक्स टी आवर्स टू फिल द टैंक एंड बी टेक्स टी माइनस 2 आवर्स टू फिल द टैंक. तो इसको अपन इक्वेट कर देंगे. तो ए की वैल्यू 2 है तो 2t हो जाएगा ये. बी की वैल्यू 3 है तो 3 इंटू टी माइनस 2. सो 3t माइनस 2t विल गिव यू t and 3 into 2 is 6. So we got the time as 6 hours. तो मतलब A को 6 घंटे लगते हैं टैंक को फिल करने में और B को कितना टाइम लगता होगा 6 माइनस 2 दैट इज 4 आवर्स. अब पॉइंट ये है कि जब अपन को ये टाइम मिल गया कि A को 6 घंटे लगते हैं तो वो ऑन कब हुआ होगा? 8 बजे तक भर देता है टैंक, 6 घंटे लगते हैं तो कब ऑन होता है A? 8 माइनस 6 दैट इज 2 PM. ठीक है. तो दैट मीन्स अपन को ये बदल गया कि जो ए या फिर बी पाइप है वो ऑन कब होते हैं? वो ऑन होते हैं एवरी डे 2 PM. ठीक है. जो अपन से ये बोला गया था एट फिक्स टाइम पॉइंट, तो जिस टाइम पे टैंक खाली होता है वो फिक्स टाइम है और उसी समय ए या बी को ऑन किया जाता है और वो टाइम है आपका 2 PM. ठीक है. सो दिस 8 PM माइनस 6 आवर्स विल गिव यू 2 PM. नाउ अपन को यहाँ पे ये देखना है कि यही टैंक अगर थर्सडे को ए और बी दोनों एक साथ भरते हैं तो कितना टाइम लगेगा. तो उसके लिए पहले चाहिए अपन को कैपेसिटी. तो टैंक की कैपेसिटी पता कर लेते हैं. तो ए की एफिशिएंसी लेके पता कर लो. ए की एफिशिएंसी कितनी है 2 और ए को कितना टाइम लगता है टी आवर्स और टी है 6. तो 2 इंटू 6 12 लीटर का टैंक है. ठीक है. अब ये भरवाना किससे? ए और बी से. कितना टाइम लेंगे? तो 12 लीटर भरवाना है. ए और बी की एफिशिएंसी 2 + 3 दैट इज 5. सो 5 लीटर पर आवर. सो दैट मीन्स दिस विल बी 12/5 आवर्स. और मिक्स फ्रैक्शन में देखें तो 5 2 ज़ा 10 2 2/5 आवर्स. ठीक है. तो अब अपन को टाइम पता ही है कि 2 बजे दोनों ऑन होते हैं और 2 2/5 आवर्स ज़्यादा लेंगे तो 2 बजे में ये वाला टाइम ऐड कर दो और आपका आंसर आ गया. सो रिक्वायर्ड टाइम इज 2 PM plus 2 2/3 hours. Okay, so that is 2 plus 2 4 hours. And what is 4 hours and what is 2/3 hours? उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 into 20 60 and this will give you 2/3 2/5 sorry, that is not 3 that is 5. 2 2/5 hours. So 2/5 is 5 12 is 60 12 2 is 24. That means 4 hours 24 minutes. सो जो टाइम है वो है आपका 4:24 एंड दैट इज PM. ओके, विच इज अवेलेबल इन ऑप्शन बी. तो आई होप यू गॉट दिस. मैंने स्टेप वाइज बिल्कुल क्लियर बताया है. पहले एफिशिएंसी, फिर टाइम इंडिविजुअली कितना लगता है ए और बी को, फिर वो ऑन कब होते हैं वो, फिर टैंक की कैपेसिटी, फिर थर्सडे की वर्किंग और फिर टाइम. So I hope you got this. Let's look at the next actual CAT question based on pipes and systems. So here we are given that a water tank has inlets of two types A and B. All inlets of type A when open bring in water at the same rate. All inlets of type B when open bring in water at the same rate. तो मतलब एक टैंक में दो टाइप के पाइप्स हैं ए और बी और ए और बी पाइप के जो ए और बी टाइप के जो पाइप्स है उनकी एफिशिएंसीज क्लियरली गिवन है सेम है क्योंकि वो सेम रेट पे पानी को अंदर आने देते हैं. द एम्प्टी टैंक is completely filled in 30 minutes if 10 inlets of type A and 45 inlets of type B are open, and in 1 hour if 8 inlets of type A and 18 inlets of type B are open. In how many minutes will the empty tank gets completely filled if 7 inlets of A and 27 inlets of B are open? तो बेसिकली यहाँ पे गिवन ये है
कि ए और बी जो पाइप है, जो टाइप ए और टाइप बी के जो पाइप्स हैं उनकी एफिशिएंसी सेम है। तो अपन उसकी एफिशिएंसी लेट से ए और बी मान लेते हैं पहले, ये एफिशिएंसी मान लेते हैं। और यहाँ पे क्लियरली गिवन है कि जो टैंक है वो 30 मिनट्स में फिल हो जाता है अगर 10 ए पाइप और 45 बी पाइप्स ऑन होते हैं तो। वेयर ए एंड बी आर द इंडिविजुअल एफिशिएंसीज ऑफ टाइप ए एंड टाइप बी पाइप्स। और ये दोनों टैंक, और सॉरी ये दोनों पाइप्स का कॉम्बिनेशन 30 मिनट्स में टैंक को फिल कर देता है। सो वी नो दैट एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज कैपेसिटी ऑफ टैंक। तो सिमिलरली अगर अपन सेकंड ग्रुप की बात करें जिसमें 8 इनलेट्स ऑफ टाइप ए एंड 18 इनलेट्स ऑफ टाइप बी, अगर ये ऑन होते हैं ऐसे तो 1 घंटे में टैंक फिल हो जाता है। सो अगेन एफिशिएंसी इनटू टाइम इज कैपेसिटी ऑफ टैंक। तो अपन यहाँ पे कैपेसिटी टैंक की तो सेम ही है तो वो अपन इक्वेट कर देंगे। तो ये अपन ने क्या बना दिया, कैपेसिटी की इक्वेशन बना के इक्वेट कर दिया है एफिशिएंसी इनटू टाइम, एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब इससे अपन को ए और बी पाइप की एफिशिएंसीज मिल जाएंगी। तो 30 इंटू टू इज 60, सो 10 ए प्लस 45 बी इज इक्वल टू 16 ए प्लस 36 बी। ये 2 मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने। 16 ए माइनस 10 ए दैट विल बी 6 ए, 45 माइनस 36 सो दैट इज 9 बी। सो ए बाई बी का रेशियो क्या आएगा, दैट इज 9/6 और 3/2। So we got the efficiency of pipe that is 3 liter per minute and 2 liter per minute। तो अपन ने ए और बी की एफिशिएंसीज पता कर ली और मान ली 3 लीटर पर मिनट और 2 लीटर पर मिनट। अब यहाँ से अपन पहले क्या पता करेंगे, टैंक की कैपेसिटी। टैंक की कैपेसिटी कितनी है, तो या तो लेफ्ट पार्ट यूज कर लो या राइट पार्ट यूज कर लो तो आपको कैपेसिटी मिल जाएगी। तो एफिशिएंसी इनटू टाइम इज कैपेसिटी। सो 10 ए लेफ्ट पार्ट यूज कर रहे हैं, 10 ए की एफिशिएंसी 3 है प्लस 45 बी की एफिशिएंसी 2 है। सो दैट इज द टोटल एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड दैट इज 30। तो ये कितना होगा टोटल, तो 10 3 ज़ा 30, 45 2 ज़ा 90, 90 प्लस 30 so that is 120 into 30, so that is the total capacity in liters। now we have to find कि अगर 7 इनलेट्स A और 27 इनलेट्स B अगर ऑन होते हैं, 7A और 27 B ऑन होते हैं तो कितने टाइम पे टैंक फिल होगा। तो वो टाइम पता कर लेते हैं अपन। 7A और 27 B ऑन हो रहे हैं तो द टोटल कैपेसिटी इज 120 into 30 divided by total efficiency of 7A, 7 3 are 21, 27B, B की efficiency 2 है, 27 into 2 is 54, so 120 into 30 divided by 50 plus 20 that is 75। तो ये लीटर में और ये यूनिट लीटर पर आवर में, तो यहाँ से आपको टाइम मिल जाएगा, सॉरी लीटर पर मिनट्स में क्योंकि यूनिट्स लीटर पर मिनट है। तो इसको कैंसिल आउट करते हैं अपन। So 15 5, 15 2s are 30 and 5 into 24 and 24 into 2 is, लीटर से लीटर कैंसिल, 24 into 2 is 48 minutes। so that is the required time जो आपको इनपुट करना था 48। so 48 मिनट्स लगेंगे अगर 7 पाइप ए और 27 पाइप बी ओपन होंगे उसी टैंक को फिल करने के लिए। Let's look at the next actual CAT question based on time and work। So here we are given that Ramesh and Ganesh can together complete a work in 16 days. After 7 days of working together, Ramesh got sick and his efficiency fell by 30%. As a result, they completed the work in 17 days instead of 16 days. If Ganesh had worked alone after Ramesh got sick, in how many days would he have completed the remaining work? So यहाँ बेसिकली गिवन है कि रमेश और गणेश मिलकर 16 दिन में एक काम कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन 7 दिन के जब ये काम स्टार्ट करते हैं तो 7 दिन के बाद रमेश गॉट सिक और उसकी एफिशिएंसी 30% ड्रॉप हो जाती है और फिर रमेश एंड गणेश मिलके काम कंटिन्यू करते हैं तो जो काम 16 दिन में होना होता है वो 17 दिन में कंप्लीट होता है।
ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली बोला है एंड में कि अगर गणेश अकेले काम करता रमेश के बीमार होने के बाद, तो रिमेनिंग वर्क कितने टाइम पे कंप्लीट होता। तो यहाँ पे जो अपन को टाइम बताना है वो रिमेनिंग वर्क का बताना है कि रिमेनिंग वर्क कितने टाइम पे कंप्लीट होता गणेश से। तो पहले तो अपन एफिशिएंसी मान लेते हैं, रमेश और गणेश की आर और जी यूनिट्स पर डे, ये अपन ने एफिशिएंसी मान ली। अब यहाँ पे ये गिवन है कि आर और जी मतलब रमेश और गणेश मिलके 16 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, तो ये टोटल वर्क होगा, एफिशिएंसी इनटू टाइम इज टोटल वर्क। बट एक्चुअल में क्या होता है कि आर और जी मिलके 7 दिन तक काम करते हैं, देन रमेश गॉट सिक एंड उसकी एफिशिएंसी 30% ड्रॉप हो जाती है। 30% एफिशिएंसी ड्रॉप हो रही है मतलब अब वो 70% एफिशिएंसी से कंटिन्यू करेगा। तो इसके बाद क्या होता है कि एफिशिएंसी ऑफ आर विल बिकम 70% ऑफ आर, एंड फिर जी भी इसके साथ काम करेगा। तो कितने दिन लगेंगे, 17 दिन इंस्टेड ऑफ 16 दिन। तो यहाँ पे क्लियरली गिवन है जो 17 डेज लगेंगे, 7 डेज ऑलरेडी हो गए, तो दैट मीन वो बचे हुए दिन क्या होंगे, 10। तो ये बस क्लियर रखना कि यहाँ 10 आएगा, क्योंकि 17 डेज में वर्क कंप्लीट हुआ है, 7 डेज ऑलरेडी हो गए। और यूजुअली क्या होता था, 16 दिन में काम कंप्लीट होता था। ये दोनों वर्क की इक्वेशन है, तो वर्क सेम है तो उसको अपन इक्वेट कर लेते हैं, और इस इक्वेशन से अपन आर और जी की एफिशिएंसी का रेशियो पता कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, इसमें अगर अपन देखें कि आर प्लस जी इंटू 16, आर प्लस जी इंटू 7, देखो ये कंपोनेंट जब लेफ्ट साइड में जाएगा तो इसका कोफिशिएंट तो सेम है, तो 16 माइनस 7 विल बी 9। So left side will become r plus g into 9 equal to 70% of r into 10. So that is 7r, and g into 10 is 10g. So ये हो जाएगा 9r plus 9g equal to 7r plus 10g. So 10g minus 9g will be g, and 9 minus 7 is 2r. So g by r is 2 by 1. So we got the efficiency ratio. तो गणेश की एफिशिएंसी अपन मान लेते हैं 2 यूनिट्स पर डे, और रमेश की एफिशिएंसी अपन मान लेते हैं 1 यूनिट पर डे। ठीक है, अब एफिशिएंसी मिल गई है तो वर्क पता कर लेते हैं। वर्क लेफ्ट साइड से पता कर लेते हैं, क्योंकि दोनों मिलके 16 दिन में वर्क कंप्लीट करते हैं। तो वर्क विल बी 2 + 1 into 16, so that is 48 यूनिट्स। तो ये टोटल वर्क है। अब अपन को बोला है कि गणेश अकेले कंटिन्यू करता है वर्क, तो रिमेनिंग वर्क कितने टाइम पे होगा। तो रिमेनिंग वर्क पता करना होगा, तो पहले देखिए उन्होंने 7 दिन काम किया था साथ में, तो कितना काम हो जाएगा 7 दिन में। तो वर्क डन इज 2 + 1 3, 3 into 7, 7 दिन काम किया था, तो दैट इज 21 यूनिट्स। तो हो चुका था काम। तो रिमेनिंग वर्क कितना हो गया, तो ये रिमेनिंग वर्क अपन पता कर रहे हैं, ये रिमेनिंग वर्क हो गया अपना। सो रिमेनिंग वर्क इज 48 minus 21, दैट इज 27 यूनिट्स। ठीक है, दैट इज 27 यूनिट्स। अब ये वर्क कौन करने वाला है, ये वर्क करेगा गणेश अकेले। ठीक है, तो वो अगर अकेले कंटिन्यू करता है तो कितना टाइम लगेगा वो निकालना था। तो टाइम टेकन बाय गणेश अलोन टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क ऑफ 27 यूनिट्स divided by efficiency of Ganesh is 2 units per day. So that is, units will get cancelled out. 27 by 2 is 13.5 days. That is the required answer, which is available in option C. So I hope you got this. Basic concept है efficiency into time. बस अपन को वर्किंग के साथ इक्वेट करनी थी कि एक्चुअल वर्किंग कैसे हुई है। उस बेसिस पे अपन ने एफिशिएंसी रेशियो निकाला, फिर वर्क, फिर रिमेनिंग वर्क, और फिर वो रिमेनिंग वर्क को अपन ने गणेश की एफिशिएंसी से डिवाइड करके गणेश का टाइम पता कर लिया। लेट्स लुक एट द एक्चुअल कैट क्वेश्चन बेस्ड ऑन टाइम एंड वर्क। सो हियर वी आर गिवन दैट 3 men and 8 machines can finish a job in half the time taken by 3 machines and 8 men to finish the same job. If 2 machines can finish the job in 13 days,
then how many men can finish the job in 13 days? So here we are given that कि man और machine मिलके काम कर रहे हैं. So let me take the efficiency of man as m and efficiency of machine as small m units per day. Units per day. ये अपन ने efficiency मान ली. किसकी? That is man and that is machine. So I am taking the efficiency of one man as m and one machine as small m. So we are given that 3 men and 8 machines. So 3 men and 8 machines can finish a job in half the time taken by 3 machines and 8 men. So 3 machines और 8 men को let's say अगर टी टाइम लगता है तो 3 men और 8 machines को half of टी टाइम लगता है. ये given है. Now we know that efficiency into time is work. और वर्क तो सेम ही है, जॉब तो सेम है, तो वर्क अपन इक्वेट कर सकते हैं. एंड फ्रॉम दिस वी विल फाइंड द efficiency ratio of man and machine. So this t will get cancelled out. So this is 3m plus 8 small m. 2 cross multiply होगा, that is 6m, that is 16m. So 16m minus 3m is 13m. 8 minus 6 is 2m. So we got the efficiency of man and machine as, that is 2 by 13. So man और machine के efficiency का ratio मिल गया. So that is, let me take this as 2 units per day and machine is 13 units per day. Now we are given that if 2 machines can finish the job in 13 days, then how many men can finish the same job in 13 days? तो 2 मशीन अगर 13 डेज में वर्क कंप्लीट कर रही है तो कितने मैन 13 डेज में वर्क कंप्लीट करेंगे? So let me take those men as n. So we are given that 2 machines can complete the same job in 13 days. अब अपन को निकालना है कितने men. So let me take that n men जो सेम जॉब 13 डेज में कर सकते हैं, तो मैन कितने रिक्वायर्ड होंगे? तो जॉब तो सेम ही है. सो एफिशिएंसी इनटू टाइम वर्क इज सेम. तो अपन क्या कर देंगे, वर्क की इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं. अब यहाँ पे अपन को स्मॉल एम और कैपिटल एम की वैल्यू पता है. स्मॉल एम इज 13 and that is into 13 equal to n is the number of men. एक मैन की एफिशिएंसी 2 है into 13. So as you can see that we can cancel out this 213 and 213. So small n is 13. So there will be 13 men required to complete that job. So आपको input करना है only 13. Clear? Look at the next question based on time and work. So here we are given that at their usual efficiency levels, A and B together finish a task in 12 days. If A had worked half as efficiently as she usually does, and B had worked thrice as efficiently as he usually does, the task would have been completed in 9 days. How many days would A take to finish the task if she works alone at her usual efficiency? तो बेसिकली यहाँ पे गिवन ये है कि यूजुअल एफिशिएंसी पे ए और बी मिलके 12 डेज में वर्क कंप्लीट करते हैं. सो दैट मीन्स ए और बी की एफिशिएंसी अगर अपन ए और बी ले लेते हैं यूनिट्स पर डे, तो वो 12 डेज में वर्क कंप्लीट करते हैं. तो एफिशिएंसी इनटू टाइम इज ऑलवेज वर्क, so that is the work. बट यहाँ पे गिवन है इफ ए हैड वर्कड हाफ एज एफिशिएंटली, तो मतलब ए अगर अपनी एफिशिएंसी का हाफ पे वर्क करता है और बी अपनी एफिशिएंसी के थ्राइस पे वर्क करता है, तो ये हो गई उनकी टोटल एफिशिएंसी. तब टाइम इनको लगता है 9 डेज सेम वर्क को करने में. सो दैट इज द एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय टाइम वर्क एंड दैट इज द न्यू एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, दैट इज वर्क. तो वर्क तो सेम ही है, तो अपन इसको इक्वेट कर देंगे. तो इस वर्क इक्वेशन को इक्वेट करके अपन ए और बी की एफिशिएंसी पता कर लेंगे एंड देन वर्क एंड देन जो रिक्वायर्ड वैल्यू है. तो
इससे अपन एफिशिएंसी का रेशियो निकालते हैं। तो दैट इज 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट इज 4a + 4b एंड दैट इज 3a/2 + 3 3 ज़ा 9b. So 9b minus 4b will be 5b, and this will be 4a minus 3a/2. So if I take the LCM left hand side, 2 4s are 8 minus 3. So that is 5a/2 equal to 5b. So from here 5 will get cancelled out. So we got the ratio of a by b, efficiency ratio as 2/1. So let me take the efficiency of a as 2 units per day and efficiency of b is 1 unit per day. So we got the efficiency मिल गई, तो अब अपन वर्क भी फाइंड कर लेंगे। तो वर्क फाइंड कर लेते हैं। सो वर्क के लिए या तो लेफ्ट साइड या राइट हैंड साइड कंसिडर कर लो। अगर लेफ्ट साइड कंसिडर करते हैं तो a + b × 12, क्योंकि दोनों मिलके 12 दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं यूजुअल एफिशिएंसी पे। तो दैट इज 2 + 1 × 12, so that is the total work, which is 3 × 12, that is 36 units. Okay, now we are given that how many days would a take to finish the task if she works alone at her usual efficiency. तो अगर ये ए अकेले काम करता है तो कितना टाइम लगेगा इस वर्क को कंप्लीट होने में। सो टाइम टेकन बाय ए अलोन विल बी 36 यूनिट्स करना है उसको अलोन, और ए की एफिशिएंसी इज 2 यूनिट्स पर डे। So that means this will get cancelled out. 2 into 18 is 36. So it will be 18 days. So that is the required answer, which is available in option A. So I hope you got this. Just remember this equation: efficiency into time is work. New efficiency into time is work. तो दो कॉमन वर्क है, इक्वेट करो, एफिशिएंसी का रेशियो निकालो, फिर वर्क निकाल के फिर जिसका भी टाइम पूछा गया वो निकालो। Look at the next question based on time and work. So here we are given that John gets rupees 57 per hour of regular work and rupees 114 per hour of overtime work. He works altogether 172 hours and his income from overtime hours is 15% of his income from regular hours. Then for how many hours did he work overtime? तो overtime उसने कितना काम किया है जॉन ने, वो अपन को सिर्फ फाइंड करना है टाइम इन आवर्स। तो बेसिकली यहाँ पे गिवन है कि जॉन को रेगुलर वर्क का मिलता है उसको 57 रुपीज और ओवर टाइम का उसको मिलता है ₹114 पर आवर, और ये भी पर आवर है। तो अपन को रेगुलर वर्क जो पर आवर करता है उसके चार्जेस पता है, ओवर टाइम के चार्जेस पता है। एक दिन उसने 172 आवर्स टोटल काम किया, वन डे ही वर्क 172 आवर्स एंड हिज इनकम फ्रॉम ओवर टाइम इज 15% ऑफ द इनकम फ्रॉम रेगुलर आवर्स। तो मतलब उसकी इनकम ओवर टाइम से जो थी वो थी 15% ऑफ इनकम फ्रॉम रेगुलर आवर्स। सो 172 आवर्स टोटल काम किया है। सो लेट मी टेक कि रेगुलर उसने टी आवर्स वर्क करा है, या फिर रेगुलर वो टी आवर्स वर्क करता है और एक दिन उसने ओवर टाइम जो है वो T1 आवर्स करा है। ठीक है, तो ये अपन ने टाइम मान लिया। सो वी नो दैट कि ओवर टाइम से जो इनकम होगी वो क्या होगी, दिस विल बी 114 इंटू T1। सो 114 इंटू T1, दिस इज 15%, दैट इज 15/100 इंटू इनकम रेगुलर से कितनी होगी, 57 रुपीज पर आवर है और टी आवर्स वर्क करा है, सो दैट इज 57 इंटू टी। सो फ्रॉम हेयर वी विल गेट द रेशियो ऑफ टाइम। ठीक है, कि ओवर टाइम और रेगुलर वर्किंग टाइम का रेशियो मिल जाएगा यहाँ से। सो उसको सॉल्व करते हैं। 57 इंटू 2 इज 114, 5 3 are 15, 5 इंटू 20, सो दैट इज T/T1 का रेशियो आ जाएगा यहाँ से, दैट इज 60/3, सॉरी 40/3। 20 into 2 is 40/3. Okay, so we got the ratio of time कि रेगुलर वर्किंग आवर्स अपन 40 मान लेते हैं और ओवर टाइम अपन 3 आवर्स ले लेते हैं। ठीक है, बट
ये एक्चुअल है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा? ये तो रेशियो है। अब रेशियो है लेकिन अपने पास टोटल टाइम भी पता है 172 आवर्स वर्क किया है। सो दैट मीन्स दिस 40 प्लस 3 इज 43 एंड दिस 43 रिप्रेजेंट 172 आवर्स। ओके, तो अगर 43 172 आवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर विल बी 4। ओके, सो वी गॉट द मल्टीप्लीकेशन फैक्टर टू गेट द एक्चुअल वैल्यूज ऑफ टाइम। तो अपन को यहाँ पे पता करना है सिर्फ ओवर टाइम वर्क। तो ओवर टाइम वर्क था अपना 3, तो 3 की एक्चुअल वैल्यू विल बी 3 इंटू 4, दैट इज 12 आवर्स। तो दैट इज द ओनली इनपुट आंसर कि अपन को इनपुट करना है 12। क्लियर? Look at the next question based on time and work. So here we are given that Anil alone can do a job in 20 days, while Sunil alone can do it in 40 days. Anil starts the job, and after 3 days, Sunil joins him. Again, after a few more days, Bimal joins them, and together they finish the job. If Bimal has done 10% of the job, then in how many days was the job done? So basically, यहाँ पे given है कि Anil takes 20 days and Sunil takes 40 days to complete the job alone. So यहाँ पे अपन टाइम का एलसीएम लेके वर्क पता कर लेते हैं. So let me take the work as LCM of 20 and 40, that is 40 units. So from here we will get the efficiency of Anil. This will be 40 by 20, that is 2 units per day, and efficiency of Sunil will be 40 by 40, that is 1 unit per day. Okay, now we are given that key, yeah, that is Anil. Now that is, we are given that key Anil starts the job and after 3 days Sunil joins. तो अनिल ने टास्क स्टार्ट किया है, 3 days तक वर्क किया अनिल ने. सो अनिल वर्क अलोन फॉर 3 days. आफ्टर 3 days सुनील ज्वाइंस हिम. तो देन फिर अनिल और सुनील दोनों काम करते हैं. अगेन आफ्टर अ फ्यू मोर डेज, वी डोंट नो कितने दिन के बाद, बट कुछ दिन के बाद बिमल ज्वाइंस देम. तो मतलब अब जो काम करने जा रहे हैं वो है अनिल, सुनील एंड बिमल. These three together will work now and they together finish the job. तो तीनों मिलके वर्क को कंप्लीट करते हैं. If Bimal has done 10% of the job, तो बिमल ने सिर्फ 10% जॉब किया है. जब से वो ज्वाइन हुआ है तब से लेके एंड तक उसने सिर्फ 10% वर्क किया है. देन इन हाउ मेनी डेज वॉज द जॉब डन, तो वर्क कितने टाइम में कंप्लीट हुआ है वो अपन को निकालना है. ठीक है, अब आप यहाँ पे ये देखो कि 40 यूनिट्स टोटल वर्क है. अनिल ने 3 दिन काम किया. अनिल की एफिशिएंसी कितनी है? 2 यूनिट. तो 2 इंटू 3 6 यूनिट्स हो गया. तो मतलब अनिल ने अकेले 6 यूनिट किया होगा स्टार्टिंग में. स्टार्टिंग के 3 दिन अकेले उसने 6 यूनिट वर्क किया. और बी का दिया है, बी ने अकेले 10% वर्क किया है. तो बी का कंट्रीब्यूशन 10% है, मतलब 40 का 10%. सो दैट इज 4 यूनिट्स. सो दैट मीन्स ए और बी का अपन को कंट्रीब्यूशन पता है. ए ने 6 यूनिट्स करा है और ये 4 यूनिट्स किया है बी ने. तो 6 + 4 = 10. तो 10 यूनिट्स का तो पता चल गया. 40 में से अगर अपन ये 10 यूनिट्स हटा दे तो 30 यूनिट्स बचेगा. सो दैट मीन्स अनिल और सुनील इन दोनों ने मिलके 30 यूनिट्स वर्क किया है. ठीक है, पहले तो ये समझना है अपन को कि अनिल और सुनील ने मिलके 30 यूनिट्स वर्क किया है, क्योंकि बिमल का 4 यूनिट है, अनिल का 6 यूनिट है. 6 + 4 10. 40 में से 10 हटा दो, 30 यूनिट्स अनिल और सुनील ने मिलके किया है. अब एक पॉइंट ध्यान से देखो, अनिल और सुनील यहां से लेके यहां तक एंड तक इन्वॉल्व है. ठीक है, तो ये पूरे डेज अपन को पता चल सकते हैं. अनिल यहां से स्टार्ट हुआ, अनिल और सुनील यहां से स्टार्ट हुए और एंड तक मेंटेन थे. ठीक है, तो अपन टाइम निकालने थे कि अनिल और सुनील ने ये वर्क करने में कितना टाइम लिया होगा. 30 यूनिट्स डिवाइड बाय उनकी एफिशिएंसी 2 + 1, सो दैट इज 3 यूनिट्स पर डे. सो दैट मीन ये हो गया 3 इंटू 10, 10 days.
सो वी गॉट दी वैल्यू दैट ये वाली जो वैल्यू है इतने पार्ट की, दैट इज टोटल 10 days। ये 10 days का वर्क है, ठीक है। और इसी 10 days में बिमल इन्वॉल्व हुआ था इसी बीच में, ठीक है। बिमल आया था यहाँ बीच में, तो बिमल के कंट्रीब्यूशन और अनिल का अलोन कंट्रीब्यूशन तो अपन ने अलग कर दिया था। तो 30 यूनिट ए और अनिल और सुनील ने मिलके किया है, और वो टाइम भी पता चल गया 10 days। तो जब इतना पार्ट 10 days है और अनिल ने शुरू में 3 दिन अकेले काम किया था, सो टोटल टाइम इज, क्लियर है आंसर। सो टोटल टाइम इज 10 + 3, that is 13 days, which is available in option A. So I hope you got this. Do revise and practice these concepts. Thank you.